साई गणेश रॉयल्स आणि घुमटेश्वर कॅप्टन मागच्या तुमच्या 12व्या गडी कॉमेंट्री बॉक्सान धाड. घुमटेश्वर मारगांव आणि साई गणेश रॉयल्स कॅप्टन्स प्लीज सेंड युअर 12 मॅन इन कॉम बॉक्स. प्रत्येक मॅचीक मॅन ऑफ द मॅच आसा सो तुमची नावां कळप गरजेची आसा. सो ह्या भागाचे पंच सदस्य दामू नायक यांच्यानी टॉस केल्लो आसा दोन्ही टिमी मदीं. टॉस वन बाय घुमटेश्वर. दे डिसायडेड टू फील्ड फर्स्ट. 6 ओव्हरीची मॅच जाता. 5 बॉलर 2 पॉवर प्ले. पयलो पॉवर प्लेक 2 फिल्डर 30 यार्ड सर्कलाच्या भायर आसतले. दुसऱ्या पॉवर प्लेक 3 फिल्डर 30 यार्ड सर्कलाच्या भायर आसतले. थ्रो बॉलाक फक्त 2 रिव्यू घेवपाक मेळटले. सो असो आसतलो फॉर्मॅट. 4थें वर्स पयलो दीस पयली मॅच आनी पयली मॅच जाता ती घुमटेश्वर मारगांव आणि साई गणेश रॉयल्स वास्को यांच्या भितर. सो पयली मॅचीची कॉमेंट्री आमच्या मुखार घेवन येता ते आमचे सिनियर कॉमेंटेटर सर हरीश काकोडकर. ओवर टू यू सर हरीश काकोडकर. So we are all set here Hello. for the 4th edition of United Force India Floodlight Edition. A wonderful start to this wonderful tournament with some of the stars playing. Both the teams at this stage are strong and considered to be one of the strongest in tennis ball cricket. That is the team from Vasco Municipality and the team from Margam Municipality. Sai Ganesh Royals Vasco lost the toss and they have been put into bat first by Ganpati Warriors Margaon. And it's going to be Mendes. So when the first innings is going to proceed, the lights will come into effect in the last over. And yes, we are going to start with Mendes and Buddy on strike. Let's see how we go ahead with the first game. This is a floodlight tournament and we are witnessing this here at Usgaon ground. All the 4 editions, all the previous 3 editions have been conducted here and the 4th one as well on the same venue. Looking to play on the offside, back of length, going straight into the hands of Mateen. This is the conditions. This is twilight at the moment. Sun is going down, and these conditions we have to look whether the ball is traveling enough quickly. Just the first ball that has been bowled, dot ball. In the air, and just shot. Mistiming, misgiving. Mateen tried hard but not getting the footings to come very close to collect the ball. So back-to-back dot balls for Gumteshwar Margaon. Slowly and steady we'll have a lot of crowd coming here when the sun goes down. The lights come into good effect and you can see the pace. It's trying to play off the back foot. Unlike Buddy here, he likes to just whack the ball and he comes charging on the front foot. Very good start here by Mendes. This time much more closer towards the bat. Still not a run on the board. 4 balls have been faced by Buddy and they are yet to open their account in the first over in spite of having so many fielders inside. Finally gets towards the backward point and opens his account with a single. So gets off the mark. And that is what I was just thinking and pondering about. This length on this wicket or the back of length just might be a successful length. Might be just little bit of pace on this concrete deck, which will be conducive for the medium pace bowlers. Someone like Mendes bowls at a decent pace. And if this length is going to be struck, it's not going to be easy for the batters.
So a level upon strike. This is powerful strike. This has gone straight out of the ground. And the first big strike here from the big man, Buddy. Score moving on to 7 without loss. The length that was bowled by Mendes and the length that is bowled here by Akshay Jogle Shirpur is way different. This was right in the arc. You don't bowl him over there. He bowls the leg cutters very effectively. But here on a concrete surface, whether it is going to be effective with that much of turn is going to be looked upon. So after a very lumbering start, Buddy has swept it away, but getting the bottom part of the bat and looking for a run out. That must have been close. A very good alert over there on the situation, but he was slow off the box and immediately turning and shying at the stumps, getting the single. All 8 runs are coming from the bat of Buddy so far. So Revan is going to take the strike. We certainly don't know what sort of total is good enough on this surface. Just the first game, and that's why Varat Dabholkar won the toss, electing to field first, just to know about the target. It's again not connecting properly, just getting a single, giving strike to Buddy. Just not middling the ball at this stage. 9 on the board. Somehow I don't see Naresh Asoldekar in this game so far. So he is going to be missed here with his experience. Yeah, that's well bowled here. Leg cutter bowling from round the wicket and pitching in line with the stumps and going slightly away from that off stump. He bowls that pretty well. Once again, looking to bowl that angle from round the wicket. That was quick. That was quick. That is fine bowling. Mixing it up well, really well. That is a good pace here. And that shows an indication that he can bowl pretty fast. And that is what tennis cricket you want to see. Not being regular. Sometimes bowling the quicker, sometimes bowling the leg cutters. A good comeback from Chirpur after being hit for 6 of the very first ball. Just concedes 9 runs in the over. It's 10 without loss at the end of 2. Yeah, that's nicely bowled. What a shot this is. A fabulous shot off the back foot, punching it over the extra covers region. And a marvelous shot. Not just a simple shot. This requires power, this requires skills, and this requires pure power. So that marks the score over to 16, beg your pardon.
What a start to this over for Buddy. The ball is come back. The match ball. So he'll be looking to bowl it again. Once again missing his mark. That's well bowled. That's well bowled. Good length. Play and a miss here from Buddy. He has struck 2 big sixes, but also he has conceded and faced few dot balls against his name. It's a 6-over game, and that's why you see Mendes, after a successful first over, has been asked to bowl once again. Looking to pick up a single. Gets the single. 7 runs of this over so far. They're still not able to get that expensive over which they are searching for. I think in a 6 over they will be thinking about getting at least 60-65. And it's not going to be easy under lights also to score. You need to place the ball well, time the ball well, and get the ball accurately enough in the over spaces and for long sixes. That is straight down the ground, and that is 6 runs. That is beautifully done here from Laplap. Once again, this is the 4th time that he has missed his mark. I think maybe just because that is end of the pitch, end of the concrete pitch, that is where he's looking at. Trying to scoop it behind the keeper, not able to strike and connect. Dot ball. So 2 sixes we have seen in this over, 2 dot balls and a single. 13 so far considered by Mendes after conceding a single of the first. That was just in the air, might be going for the boundary. This is quick outfield. Not the best time shot here. Scooped it in the air, but just away from the fielder. Well placed. Will get boundary and a pretty expensive over. This is what they were searching for. 17 runs conceded in this over by Mendes. End of over number 3. So the captain walks in to bowl that over number 4. Bowled pretty well in the first over, but then the batting side of Sai Ganesh Royals of Vasco Municipality, courtesy of Buddy, yet to take up a wicket here, and that has brought in the leggy Varat Dabolkar. That's well bowled here. Not turning in too much. You can see he was looking for the turn and playing it over the long on. Just cut him in between his bat and pad. A lovely bowling here. Slow in the air, trying to play off the back foot. Mateen is standing just behind the wickets, very close to the wickets there. That what is stopping the batter to use the feet. It's a fine piece of bowler. What a Dabolkar if he gets it on the right spot.
And that's why now there is a field change prompted, especially for Lup. Man going in the deep mid-point region. Deep point region, and man going at the wide long off covers area in the deep. Well bowled, beautifully bowled here, looking to pick up a single. The fine leg was alert. Lup, yeah, he's not even picked that up. What was coming from the hands, whether it was a googly or a leg breaker. Beautifully disguised him, landing in the right spots here. What a Dabolkar. This time he picks it. This time he picks it, and long six. Right in this slot, right in this spot. Not a bad shot tried here. He just wanted to be better, but Varat Dabolkar was up to the task. Back of length, slightly quick in the air, pushed it through. Mateen has done a good job behind the wickets for the leggy. And you would require to have a good wicket keeper for a leg spinner to get his confidence and bowl the flighted ones, not allowing the batter to use the feet. Another good ball. So I think it's a successful over for Gumteshwar Margao. Just the 7 runs that has been conceded in this over so far marks the end of over number 4. Is going to be a 34 without loss. They have not got a lot of total on the board, not taken a single wicket at this moment, the bowling side of Gumteshwar Margao. But they have not allowed the game to drift away as well. It is well in control at this stage. 34 in 4 overs on a wicket like this. I think good job done by the bowlers. So they need to finish well. Just try to restrict them, maybe under 55, 60 is what they'll be hoping, and then try to chase it down. Anything above 60, I think, is a pretty good, formidable bowling unit of Sai Ganesh Royals of Vasco. They will come hard at the batters and will feel confident. So these 2 overs are going to be crucial. And Buddy is there on the wicket. So he's also bowling with a leg cutter here, Abdul. So after Varat, Abdul has been asked to give a go here. I've not seen much of this boy, but definitely looks to be a good prospect. Bowling just gentle leg spinners, and then sometimes he might push one through quicker. So Varat Dabolkar is just telling him exactly where to land and what is needed to be done. Buddy might just not go for the switch hit, just like Lup is trying to go. Lovely ball. Back of length. Cutting the ball away. Looking to heave away on the leg side. Might be looking for one more. Should be a run out on the cards. And might be a third one. No, they settled down for a couple of runs. It was a decent throw from Mateen, but just I think going above the reach of the bowler. Getting Buddy back on strike. That's much better here, because advantage with Buddy is he has played the leg spinners more in his life, and also in leather ball cricket. Lup is trying to go for the switch hit, not unsure about. Oh, it has hit him. It has hit him. He missed out on a loose ball there. He tried to pick up that. Maybe he thought that it was going to be a slower leg cutter, leg breaker. It was a quicker one pushed in. Definitely an opportunity missed out by Buddy. Good. This was short and asking to be hit. Punished in disdain. Too short.
but the power strikes it over the mid-wicket region. Another one. This is also pulled away. Much more confident and much more control. This slightly short, pulled away, but the man in the deep just going to be a single. Bowled in patches over there, Abdul, and that is going to be ending at the over number 5, 49 without loss. This is the last over. This is high, and this has gone a long distance. Stand and deliver here from into effect here. We will have 7 matches tonight in this municipality side, United Force India. Straight back, Badi, little hesitant in trying to take the single there. He wanted the strike, but not allowed on that occasion. Was caught in two minds there, whether to run or not. But finally taken that single, moves the score to 56. 4 balls left in this innings. In the air, not timing once again, missing the timing totally, and will be settling for a single. Lup has not timed the ball at all in this innings. He has tried to hit the ball too hard and just getting maybe the top part of the bat on the most of the occasions. So Badi is a better man here to finish off with those blistering shots. 57. That's well played. What a shot this is. Off the back foot, over the covers, and a stunning shot. Absolutely stunning shot here from Badi. Off the back foot, over the covers, and that takes the toll to 63. Badi moves on to 45. The score moves on to 63.
Two sixes definitely has been hit and a boundary from Raven's bat, that is Luplup's bat, but Buddy has been more dominant in the run chart, run scoring. Couple of balls left here. The score is 63. One shot away from his half century in the very first innings. Where are we going to witness the half century? Yeah, we can definitely. And that is Syed Wadi getting the first half century of this fourth edition of United Force India Floodlight Tournament, all Goa level. And that is marvelous batting. Moves the score to 69. So margin of error is very less. Now in comes the last ball. 69. It has been fascinating with the short play on both sides of the wicket. Here comes the last ball. 69 so far. In the air, should be a chance for the bowler himself, and he drops it. But he will be looking to pick up a couple of runs. Throw coming in nicely, and a very good job here by the keeper. So as out says the leg umpire, but Buddy has played a marvelous knock in the first game itself. And that is how they managed to get a total of 70 runs on the board. 70 for the loss of 1 wicket, courtesy of a run out of the last ball. 71 is the target set for Ganapati Warriors Margao. In fact, Gumteshwar Margao to win the game. I just saw Babu in front of me, and suddenly Ganapati Warriors spiked from a mouth. That happens. So Gumteshwar Margao, it is going to be chasing 71 runs. And what a knock here by Buddy. He's giving a big round of applause. Played a knock of 61. plus 52 runs from Buddy. 17 run contribution from Laplup. So that's how we are going to see the second innings of 71 run chase when Gumteshwar Margao come into bat. So let's see a change in the commentary box after the first 6 overs. I'll hand over the mic to Wasim for the next updates in Hindi. Welcome, Wasim. सर थैंक यू हरीश सर। स्वागत है आप सभी का इस यूनाइटेड फोर्स इंडिया आयोजित फोर्थ ऑल गोवा पंचायत म्यूनसिपालिटी फ्लडलाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में आप सभी का हमारे कॉम बॉक्स की तरफ से, हमारी यूनाइटेड फोर्स की कमेटी की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत। अगला मुकाबला खेला जाएगा रिक्वेस्टिंग कैप्टन ऑफ MK Brothers Margao and Kamakshi Fonda, please report to commentary box for toss. Requesting both the captains, captain of MK Brothers Margao and Kamakshi Fonda, please come for toss.
सो बढ़ते हैं अगली इनिंग की तरफ। टॉस जीता था घुमटेश्वर मारगांव ने, आमंत्रित किया था साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम को बल्लेबाजी के लिए। साई गणेश रॉयल्स वास्को ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाए। 71 रनों का योगदान, 71 रनों का लक्ष्य जो कि रखा है घुमटेश्वर मारगांव के खिलाफ। और घुमटेश्वर मारगांव के सलामी जोड़ी मैदान पर मतीन खान और उनके साथ दिनेश और मतीन की ये सलामी जोड़ी मैदान के अंदर 71 रनों का पीछा करने के लिए। देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। आज के दिन का पहला ये मुकाबला खेला जा रहा है साई गणेश रॉयल्स वास्को बनाम घुमटेश्वर मारगांव के बीच। गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला और पावर प्ले का ओवर लेकर विनोद विल्सन, जो कि काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी इस पूरे गोवा राज्य में अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के चलते बहुत ही फेमस है। अंपायर का इशारा आता हुआ बढ़ते हैं सेकंड इनिंग की तरफ। विनोद विल्सन अपनी पहली और पावर प्ले का ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। स्ट्राइकिंग एंड पर मतीन खान, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उनके साथ दिनेश, विकेटों के पीछे से सैयद बद्दी, जिन्होंने एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेली, 50 रनों का योगदान दिया था। फिलहाल पहली गेंद खराब गेंद, फुल टच गेंद, अल्टी पल्टी का प्रयास, निकल जाएगी गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर। पहली गेंद पर पहला चौका मतीन खान के बल्ले से निकलता हुआ। बिल्कुल ये फुल टच गेंद थी, खराब गेंद थी, अल्टी पल्टी खेला। हालांकि उतना अच्छा कनेक्शन नहीं था, लेकिन 30 गज दायरे को क्रॉस करते हुए गेंद निकल गई 4 रन के लिए। पहली गेंद पर अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए मतीन खान फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर। फिर से एक बार विनोद विल्सन अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार भी धीमी गति की गेंद, लोअर फुल टच की गेंद, दिशा दी, निकल रही है गेंद अलोंग द कारपेट, फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट मतीन खान के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। बिल्कुल जानते हैं मतीन खान, ये पावर प्ले का ओवर केवल 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर देखने को मिलेंगे। और इस पावर प्ले के ओवर में किस तरीके से बल्लेबाजी करने, इस बार भी अल्टी पल्टी, लेकिन इस बार पॉइंट पर फील्डर जब तक इस गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं मिलेगा, बिल्कुल समाप्त किया वहां पर रन की संभावना को। पहली 2 गेंदों में 2 चौके, उसके बाद एक डॉट गेंद, कमबैक करना फिलहाल विनोद विल्सन को जरूरी पावर प्ले का ये ओवर। 8 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर। इस बार जोरदार अपील जरूर की थी, कदमों से टकराई थी गेंद गली पर। जब तक गेंद फील्ड होती है, लेग बाइस के रूप में एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ स्ट्राइक रोटेट हुआ मैदान पर और इस इनिंग में पहली बार स्ट्राइक पर आते हुए दिनेश मतीन खान, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उनके साथ। और स्कोर की अगर बात की जाए तो 9 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार खूबसूरत शॉट, गैप में है गेंद, अलोंग द कारपेट, आउटफील्ड काफी तेज, निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए ये तीसरा चौका इस ओवर में, लेकिन इस बार निकला है दिनेश के बल्ले से। खूबसूरत शॉट, गैप में एग्जीक्यूट किया इस गेंद को और 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। इसी 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। कुल मिलाकर एक बेहतरीन शुरुआत घुमटेश्वर मारगांव की तरफ से। इस बार धीमी गति की गेंद, गलती कर बैठे वहां पर और फंस गए थर्ड मैन के हाथों में। हालांकि लोअर फुल टच की गेंद थी, छक्का या चौका लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। इसी के साथ पहली विकेट का पतन मैदान पर। दिनेश बैक टू पवेलियन।
इसी बीच requesting captain of MK Brothers Margao and captain of Kamakshi Fonda, please come for toss. Second call for you, captain of MK Brothers Margao and captain of Kamakshi Fonda, please come for toss. खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर अगले गेंदबाज विशाल अपने बॉलिंग मार्ग पर आते आते खूबसूरत गेंद हल्के हाथों से इस गेंद को ड्राइव किया। जब तक ये गेंद फील्ड होती, थ्रो होती, तब तक एक रन पूरा किया और अगले बल्लेबाज मतीन खान का साथ देने के लिए अब्दुल को भेजा गया है कप्तान द्वारा मैदान पर मतीन खान का साथ देने के लिए। इस बार अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं था। शॉर्ट थर्ड मैन इस गेंद के लिए निकले, जब तक इस गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छे गेंद सीधे बल्ले के साथ खेल दिया, मिड ऑफ पर काफी बेहतरीन फील्डिंग, बिल्कुल रन की संभावना को समाप्त किया। एक डॉट गेंद निकलती हुई, एक बिंदी गेंद निकलती हुई मैदान पर। इस बार भी अल्टी पल्टी, लेकिन इस बार भी बेहतरीन फील्डिंग। इस बार भी रन लेना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल क्या खूबसूरत फील्डिंग साई गणेश रॉयल्स के सभी खिलाड़ियों द्वारा बिल्कुल रोक के रखा है गुप्तेश्वर मारगांव के बल्लेबाजों को। हालांकि गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मतीन खान, लेकिन बिल्कुल असफल रहे अब तक। इस बार अच्छा शॉट और यहां पर एक आसान सा कैच था, पॉइंट पर फील्डर तैनात किया था, बिल्कुल वही फंस गए थे मतीन खान। लेकिन यहां पर कैच छोटा, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज का कैच छोटा है मतीन खान, जो कि ओपनर के तौर पे खेलते हैं उनकी टीम के लिए। उनका कैच छोटा मैदान पर और स्ट्राइक पर आते हुए अब्दुल। फिलहाल विशाल की काफी अच्छी गेंदबाजी, ये दूसरा पावर प्ले का ओवर। इस बार तेज करार ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर रखी थी, सीधे जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। इसी के साथ खेल दूसरे ओवर का समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। तीसरा ओवर करने के लिए अगले गेंदबाज है यासीन सिंगनगुट्टी, काफी अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी साई गणेश रॉयल्स वास्को की तरफ से। फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्ग पर थोड़ी सी फील्डिंग पे सजावट करते हुए पावर प्ले का जो कि खत्म होता हुआ रेस्ट्रिक्शंस, 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। पहली गेंद यासीन की। इस बार फुल टच गेंद थी, जोरदार बल्ला घुमाया था, बल्ले का किनारा जरूर लगा, लेकिन लपलप वहां पर काफी बेहतरीन फील्डिंग करते हुए देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। गेंद आउटफील्ड जो कि काफी तेज है, 4 रनों के लिए गेंद निकल गई। इस 4 रन के साथ निकला इस ओवर में पहला चौका और पहले चौके के बाद रन संख्या जो कि आगे बढ़ी
20 रनों पर। रिक्वेस्टिंग कैप्टन ऑफ कामाक्षी फोंडा एंड एमके ब्रदर्स, प्लीज कम फॉर टॉस, फाइनल कॉल फॉर यू। इस बार भी फुल टॉस गेंद, इस बार देखना होगा कैच का मौका, कोई गलती नहीं करेंगे। पहले अटेम्प्ट में नहीं बल्कि दूसरे अटेम्प्ट में इस कैच को पकड़ा और मतीन खान की पारी समाप्त। एक जीवनदान जरूर मिला था, उस जीवनदान का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए मतीन खान। बैक टू पवेलियन। Final call for the captain of Kamakshi Fonda and captain of MK Brothers Margao. Please come for us. Final call for both the captains. अगले बल्लेबाज मतीन के आउट होने के बाद अब्दुल का साथ देने के लिए साहिल बाएं हाथ के बल्लेबाज को भेजा है। कप्तान ने भार सौंपा है बल्लेबाजी का। अभी भी स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए तो 20 रन लग चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। इस बार अच्छी गेंद तेज करा दी, गेंद हेलोंग कार पे ड्राइव किया, शॉर्ट थर्ड में निकले, इस गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। तब तक एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 21 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। ओ इस बार क्या खूबसूरत गेंद, उंगलियां फेरी बिल्कुल इस गेंद पर, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी, बिल्कुल जोखिम नहीं उठाया, शॉट नहीं खेला वहां पर अब्दुल ने, बिल्कुल खामोश रखा अब्दुल जैसे बल्लेबाज को। ऐसी जिंगर गुट्टी की अगर बात की जाए तो काफी वेरिएशन इनके पास मौजूद और वो वेरिएशन का फायदा उठाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर फिलहाल तैयार। इस बार तेज करार गेंद, गेंद खड़ी हो गई, कैच का मौका देखना होगा। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को देखते रह गए और गेंद निकल गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। 6 रनों के लिए खूबसूरत शॉट निकलता हुआ अब्दुल के बल्ले से। इस बार भी जोरदार बल्ला घुमाया था, लेकिन इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ ये रखी गेंद को और गेंद निकल गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। एक डॉट गेंद के साथ अपनी ओवर की समाप्ति करते हुए यासीन, और इसी के साथ खेल तीसरे ओवर का समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 27 रन। अभी भी आने वाली 18 गेंदों का खेल बाकी और 18 गेंदों में जीत के लिए 44 रनों की आवश्यकता, यानी कि 44 रनों की आवश्यकता। आने वाली 18 गेंदों का खेल बाकी। क्या होगा इस मुकाबले में ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद का दूसरा टीम का चौथा ओवर लेकर फिर से इकबाल विशाल को आमंत्रित किया है। विशाल के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है, इनके कंधों पर भार सौंपा है कप्तान ने। अगला मुकाबला जो कि खेला जाएगा एमके ब्रदर्स मारगांव बनाम कामाक्षी फोंडा। रिक्वेस्टिंग बोथ कैप्टन्स प्लीज कम फॉर टॉस। चौथा ओवर प्रगति पर विशाल खुद का दूसरा टीम का चौथा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है और बल्लेबाजी के लिए साहिल एक बाएं हाथ के बल्लेबाज फिलहाल सामना करेंगे विशाल की पहली गेंद का। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जरूर कर रहे हैं साहिल के लिए। दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी ये मैदान पर। विशाल की पहली गेंद, खूबसूरत गेंद, डॉट गेंद के साथ अपनी ओवर की शुरुआत करते हुए बेहतरीन। जितनी भी डॉट गेंदें निकलेगी वो दबाव बनाएगी, वो दबाव जरूर बनाएगी गुप्तेश्वर मारगांव के खिलाड़ियों पर, उनके बल्लेबाजों पर। इस बार भी जोरदार बल्ला घुमाया था विकेटों के पीछे से। बिल्कुल अपील हो रही है, लेकिन इस अपील में
उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम। एक और डॉट गेंद निकलते हुए अब मात्र 16 गेंदों का खेल बाकी और 16 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता। 44 ऑफ 16 डिलीवरीज। फिर से एक बार विशाल अपनी तीसरी गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार अच्छी गेंद, इस बार भी खूबसूरत गेंद। बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे इस गेंद को, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट गेंद निकलती हुई, लगातार तीसरी डॉट गेंद इस ओवर पे निकले। विशाल की खूबसूरत गेंदबाजी। इस बार देखना होगा ओवर थ्रो, और ओवर थ्रो के चलते यहां पर निकला 22 के रूप में एक रन जरूर जुड़ गया टीम के खाते में। स्ट्राइक पर फिलहाल अब्दुल आते हुए। एक और डॉट गेंद जरूर निकली थी मैदान पर। खूबसूरत गेंदबाजी, 4 डॉट गेंद विशाल की इस ओवर में। क्या खूबसूरत ओवर रहा था पहला ओवर भी इनका, उसके बाद कमबैक बिल्कुल करवाया अपनी टीम के लिए। विशाल थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए। दाएं हाथ के बल्लेबाज अब्दुल फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर। एक छक्का इनके बल्ले से जरूर निकला इस इनिंग में। इस बार इनको भी खामोश रखा बिल्कुल। लगातार ये 5वीं डॉट गेंद विशाल की। खूबसूरत गेंदबाजी, बिल्कुल तालियां बज रही है विशाल के लिए। और क्यों ना बजे, इस प्रेशर बिल्कुल इनके ऊपर है, लेकिन ये प्रेशर बिल्कुल बल्लेबाजों पर डालते हुए काफी खूबसूरत गेंदबाजी। बल्ले का किनारा जरूर लगा था, लेकिन रोक नहीं पाए विकेट कीपर इस गेंद को। गेंद निकल गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर। 4 रनों के लिए इस इनिंग में एक चौका निकला, और इस चौके के साथ रन संख्या 32 रन 32 रनों पर पहुंचती हुई। अगले बल्लेबाज देवराज आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और गेंदबाजी के मोर्चे पर समीर आते आते एक लोअर फुटर्स की गेंद। काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। आसिफ बिल्कुल हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे। इस गेंद को जब तक फील्ड किया, थ्रो किया, एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 33 रनों पर। इस बार जोरदार बल्ला घुमाया था शॉर्टरमैन का, बेहतरीन बैकअप वहां पर, लेकिन एक रन जरूर जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 34 रनों पर। 34 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। आने वाली 10 गेंदों का खेल बाकी, और 10 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता। इस बार पुल करना चाहते थे, फंस गई है शॉर्टरमैन इस गेंद के नीचे, और इस कैच को अंजाम दिया। एक और विकेट का पतन मैदान पर। खूबसूरत गेंदबाजी समीर की। दबाव बिल्कुल बनाए रखे गुप्तेश्वर मारगांव के ऊपर। मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का। समीकरण मैच का एकदम एक बार बता दो। आने वाली 9 गेंदों का खेल बाकी, और 9 गेंदों में 37 रन यानी कि 37 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुश्किल जरूर नजर आ रहा है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है।
और बल्लेबाजी के लिए इस कारनामे को अंजाम देने के लिए मोहम्मद के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी। आने वाली 9 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता। क्या होगा इस मुकाबले में? समीर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए फिलहाल हाईवे एंड से अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार धीमी गति की गेंद, उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर, फील्डर वहां पर मौजूद और फील्डर को चकमा देते हुए गेंद निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। 1 ड्रॉप सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए यूनाइटेड फोर्स इंडिया चौका। इस बार अच्छी गेंद फुल लेंथ की गेंद, लोअर फील्डर्स की गेंद हल्का हाथों से ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पर। जब तक ये गेंद फील्ड होती, थ्रो होती है कि सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 39 रन, 39 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार खामोश रखा, खूबसूरत गेंद, फुल लेंथ की गेंद सीधे जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में। बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से एक सफल ओवर की समाप्ति। और इसी के साथ खेल 5 ओवर का समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन स्कोरबोर्ड पर। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी, आखिरी 6 गेंदों की ये इनिंग बाकी और आने वाली 6 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता, यानी कि 32 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस 32 रनों को डिफेंड करने के लिए कप्तान ने भार सौंपा है उन्नी कृष्णन, एक काफी बेहतरीन गेंदबाज। हालांकि पहला ओवर करते थे लेकिन यहाँ पर आखिरी ओवर करते दिखाई दे रहे। खूबसूरत गेंद, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करेंगे, बिल्कुल रन की संभावना को समाप्त। अब मात्र यहाँ से 5 गेंदों में 5 बड़े हिट भी लगते हैं तो ये मुकाबला काफी मुश्किल नजर आता हुआ। बिल्कुल यहाँ से दिल्ली काफी दूर नजर आते हुए। इस बार क्लीन बॉल, फुल टच गेंद थी, तेज करारी गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। उन्नी कृष्णन मैदान पर कहते हुए यू मिस आई हिट। अब मात्र 4 गेंदों का खेल बाकी, 4 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। और अगले बल्लेबाज आए हैं गुरशांत उर्फ मैंडिस मैदान की तरफ उन्नी कृष्णन की अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार आते आते एक बेहतरीन शॉट, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, लेकिन बाउंड्री लाइन पर इस कैच को अंजाम दिया आसिफ सिंह गुट्टी ने। और गुरशांत की पारी समाप्त। मैदान पर गुरशांत बैक टू पवेलियन। अगले बल्लेबाज वरद आए हैं। आते आते हल्के हाथों से लोअर फील्डर्स की गेंद को ड्राइव किया, बिल्कुल रन नहीं लेना चाहते।
क्योंकि जानते हैं काफी यहाँ पर इक्के दुक्के से काम होने वाला है नहीं। ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा बना दिया है। साई गणेश रॉयल्स के गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी 71 रन डिफेंड करने के लिए अपनी टीम के लिए। इस बार तेज करा दी गेंद अलॉन्ग द कारपेट, इस गेंद को ड्राइव किया। फील्डर वहां पर मौजूद यासीन, जब तक इस गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, कोई रन नहीं मिलेगा वहां पर। केवल औपचारिकता बाकी रह गई इस मुकाबले में। चलिए इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम ने। वेल प्लेड साई गणेश रॉयल्स, कांग्रेचुलेशंस एंड हार्ड लक टू गुप्तेश्वर मारगांव। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच की तरफ बढ़ते, इस मुकाबले के हीरो की तरफ बढ़ते, इस मुकाबले के